this lecture. As I told you in the previous lecture that we are going in the last phase of your syllabus, and some of the topics that are remaining in the unit 5 is written over here. You can see equalization, diversity and channel coding. So we are going to touch all these topics, and maybe it will require 2-3 more lectures to finish your syllabus. So let's begin the discussion. Mobile communication systems require signal processing techniques that improve the link performance in hostile mobile radio environments, as seen in chapter 3 and 4, where we discussed about the fading and all those losses, diffraction, reflection and scattering. The mobile radio channel is particularly dynamic due to multipath fading and Doppler spread. And then shown in the later part of the chapter 5, these effects have a stronger negative impact on the bit error rate of any modulation technique. We will talk about bit error rate as well, okay, later. Mobile radio channel impairments cause the signal at the receiver to distort or fade significantly as compared to the AWGN signal. AWGN सिग्नल मतलब वो सिग्नल जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज होंगे। अब इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। So equalization, diversity and channel coding are the three techniques which can be used independently or in tandem to improve received signal quality. Received signal की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप जो तीन टेक्निक की हेल्प लेंगे वो एक है इक्वलाइजेशन, दूसरा है डाइवर्सिटी और तीसरा है चैनल की कोडिंग. So let us understand what these terms mean actually. So equalization compensates for inter symbol interference, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं उसको ISI, created by multipath within time dispersive channels. As shown in chapters 4 and 5, मतलब जहां पे हम लोगों ने फेडिंग डिस्कस की, मतलब लॉसेस डिस्कस किए. If the modulation bandwidth exceeds the coherence bandwidth of the radio channel, ISI occurs and modulation pulses are spread in time. An equalizer within a receiver compensates for the average range of expected channel amplitude and delay characteristics. So equalizers must be adaptive since the channel is generally unknown and time varying. तो इक्वलाइजर क्या करता है, जो भी लॉसेस आते हैं उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करता है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है, ताकि आपका जो आपकी जो रिसीव्ड सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है या रिसीव्ड सिग्नल की जो क्वालिटी है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे. इसलिए इक्वलाइजर को क्या होना पड़ेगा, एडॉप्टिव होना पड़ेगा. अगर वो एडॉप्टिव नहीं होगा तो चैनल के साथ, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो टाइम वेरिंग है और अननोन है कि किस एनवायरनमेंट में आपको सिग्नल का ट्रांसमिशन करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडाप्टेबिलिटी आपके इक्वलाइजर की होनी बहुत जरूरी है. तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. Diversity is another technique used to compensate for fading channel impairments and is usually implemented by using two or more receiving antennas. As with an equalizer, the quality of a mobile communication link is improved without increasing the transmitted power and bandwidth. However, while equalization is used to counter the effects of time dispersion, diversity is usually employed to reduce the depth and duration of the fades experienced by a receiver in a flat fading channel. तो जब हम इक्वलाइजेशन की बात करते हैं तो इक्वलाइजेशन क्या करता है, आपको इक्वलाइज करता है, आपके कंपनसेट करने की कोशिश करता है जो लॉसेस हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की तो वो क्या करता है, आपके चैनल में जो कहना चाहिए ड्यूरेशन और जो डेप्थ है, जो आपके फेड के कारण एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है. So diversity techniques can be employed at both base station and mobile receiver. And the most common diversity technique is called spatial diversity, whereby multipath antennas are strategically spaced and connected to a common receiving system. While one antenna sees a signal null, one of the other antennas may see a signal peak, and the receiver is able to select the antenna which is best at any time. तो देख लेंगे आपकी सिग्नल की पीक कहाँ से आ रही है और कौन सा वीक सिग्नल है, कहाँ से वीक सिग्नल मिल रहा है. तो जहां से भी आपको पीक सिग्नल मिल रहा होगा, बेस्ट सिग्नल मिल रहा होगा, वो जो है वो सेलेक्ट कर लेगा. तो डाइवर्सिफाई हो गया आपका सिस्टम उसके लिए, और उस तरीके से अडॉप्ट कर लिया सिस्टम ने कि जहां से भी पीक सिग्नल आ रहा होगा वो उसी को ही क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा.
अदर डाइवर्सिटी इसको बोलेंगे स्पेशल डाइवर्सिटी. ओके. अदर डाइवर्सिटी टेक्निक्स इंक्लूड एंटीना पोलराइजेशन डाइवर्सिटी, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी एंड टाइम डाइवर्सिटी. CDMA systems often use a rake receiver which provides link improvement through time diversity. So we will see about this receiver and time diversity later in the chapter. Channel coding improves mobile communication link performance by adding redundant data bits in the transmitted message. जैसे coding होती है आपके transmission और reception में. At the baseband portion of the transmitter, a channel coder maps a digital message sequence into another specific code sequence containing a greater number of bits than originally contained in the message. The coded message is then modulated for transmission in the wireless channel. तो कोडिंग का यूज तो सबको पता ही है कि कोडिंग क्यों यूज होता है कि भाई हमको कोई एरर रिसीव ना हो, कोई एरर या सिग्नल या फिर कोई ऐसा अनवांटेड इंटरफेरेंस ना आए. आपका जो डेटा जो आप सेंड कर रहे हैं फ्रॉम द एनकोडेड साइड, फ्रॉम द सेंडर साइड, तो एट द रिसीवर साइड, at the decoder, the same data will be received, should be received. Channel coding is used by the receiver to detect or correct some of the errors introduced by a channel in a particular sequence of a message bits. Because decoding is performed after the demodulation portion of the receiver, coding can be considered to be a post डिटेक्शन टेक्निक. ऑब्वियसली पहले डिमोडुलेट करेंगे सिग्नल को, पहले अलग करेंगे कैरियर से आपके एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को, या जो भी आप सिग्नल, जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप भेज रहे हैं उसको आप कैरियर से अलग करेंगे, उसके बाद ही आप उसको डिकोड करेंगे. ठीक है, इसलिए पोस्ट डिटेक्शन टेक्निक भी बोलते हैं इसको. द एडेड कोडिंग बिट्स लोअर्स द रॉ डेटा ट्रांसमिशन रेट थ्रू द चैनल. क्योंकि इसलिए होता है ये कि आपने एडिशनल बिट्स ऐड कर दिए. अगर सिर्फ उन बिट्स का ट्रांसमिशन होता जो आप सेंड करना चाह रहे हैं तो डिटेक्शन रेट जो है वो फास्टर होता. लेकिन हम लोगों ने क्योंकि एडिशनल बिट्स ऐड किए हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इसलिए वो जो है वो स्लो हो जाता है. ठीक है. देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ चैनल कोड्स, ब्लॉक कोड्स एंड कन्वोल्यूशन कोड्स. Channel coding is generally treated independently from the type of modulation used. Although this has changed recently with the use of trellis coded modulation schemes that combine coding and modulation to achieve large coding gains without any bandwidth expansion. ठीक है. The three techniques of equalization, diversity and channel coding are used to improve radio link performance, but the approach, cost, complexity and effectiveness of each technique वेरीज वाइडली इन प्रैक्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ये तीनों के तीनों जो सिस्टम है वो आपके किसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं, रेडियो लिंक परफॉर्मेंस को. लेकिन तीनों का की कॉस्टिंग, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनका प्रैक्टिकल बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है और बहुत वाइडली वेरी करता है. एक एक करके हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. आज हम लोग समझते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इक्वलाइजेशन के बारे में. So inter-symbol interference caused by multi-path in band limited time dispersive channel distorts the transmitted signal, causing bit errors at the receiver. So ISI has been recognized as a major obstacle to high-speed data transmission over the mobile radio channels. Equalization is a technique used to combat inter-symbol interference. ठीक है. In a broad sense, the term equalization can be used to describe any signal processing operation that minimizes ISI, inter-symbol interference. In radio channels, a variety of adaptive equalizers can be used to cancel interference while providing diversity. Okay. Since the mobile fading channel is random and time varying, equalizers must track the time varying characteristic of the mobile channel and thus are called adaptive equalizers. The general operating mode of an adaptive equalizer include training and tracking. दोनों, training फिर tracking. First, a known fixed length training sequence is sent by the transmitter so that the receiver equalizer may average to proper setting. मैंने यहाँ से एक भेज दिया भाई कि इस तरीके से आपको ट्रेन हो जाना है. मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती है, आपने उसके हिसाब से प्रॉपर तैयारी की और फिर आप जो है एग्जाम देने के लिए बैठे. सिमिलरली जो आपका ट्रांसमीटर है उसने रिसीवर को पहले से ट्रेन कर दिया कि इस तरीके का सिग्नल मैं भेजने वाला हूं. ठीक है, ताकि जब वो ट्रैक करे तो देख ले कि किस तरीके का सीक्वेंस या सिग्नल वहां से जनरेट होके आ रहा है. The training sequence is typically a pseudo-random binary signal or a fixed prescribed bit pattern. दोनों हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, डिस्क्राइब्ड भी हो सकता है. Immediately following this training sequence, the user data is sent at the adaptive equalizer at the receiver utilizes a recursive algorithm to evaluate the channel and estimate filter coefficients to compensate for the channel.
The training sequence is designed to permit an equalizer at the receiver to acquire the proper filter coefficients in the worst possible channel conditions so that when the transmitting sequence is finished, the filter coefficients are near to optimal values for recognition of the user data. ये सारी चीजें होती है, एक एल्गोरिदम सेट होता है, एल्गोरिदम सेट होके जैसे उसने ट्रेनिंग ली उसके हिसाब से डेटा को रीड करता है, डेटा को रीड करने के बाद प्रॉपर फिल्टरिंग होती है, फिल्टरिंग कंडीशन भी इस तरीके से रखी जाती है, उसका ट्रेनिंग सीक्वेंस जैसे ही वो फिनिश हो तो सारे फिल्टर कोएफिशिएंट्स जो है वो ऑप्टिमल वैल्यूज पे सेट हो जाए और आपका यूजर डेटा जो है ठीक से रिसीव हो जाए. As user data are received, the adaptive algorithm of the equalizers tracks the changing channel. As a consequence, the adaptive equalizer is continually changing its filter characteristics over time. The time span over which an equalizer coverages is a function of the equalizer algorithm, the equalizer structure, and the time rate of the change of the multipath radio channel. Equalizers require periodic retraining in order to maintain the effective ISI cancellation. बार-बार आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बार-बार ट्रेनिंग सीक्वेंस भेजने पड़ेंगे, and are commonly used in digital communication systems where user data is segmented into short-term blocks. एनालॉग कम्युनिकेशन में इक्वलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है. डिजिटल कम्युनिकेशन में हम शॉर्ट बर्स्ट में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो वहां पे आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में ज्यादा पॉपुलर है. टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वायरलेस टेक्निक्स आर पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर द इक्वलाइजर्स. TDMA system, as discussed, TDMA system send data in fixed length time blocks and the training sequence is usually sent at the beginning of the block. Each time a new data block is received. TDMA, FDMA आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. टाइम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो या टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो तो जो है इसको करना इजी होता है. द इक्वलाइजर इज रीट्रेन यूजिंग द सेम ट्रेनिंग सीक्वेंस. तो आपको बार-बार ट्रेनिंग सीक्वेंस बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. An equalizer is usually implemented as baseband or at IF in a receiver. Since the baseband complex envelope expression can be used to represent band pass waveforms, the channel response, demodulated signal, and adaptive equalizer algorithms are usually simulated and implemented at baseband. ठीक है, तो 6.1 में एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम का विथ एन एडॉप्टिव इक्वलाइजर एट द रिसीवर. इफ xt is the original information signal and ft is the combined complex baseband impulse response of the transmitter channel and the RF-IF section of the receiver, the signal received by the equalizer may be expressed as this. ठीक है, जिसमें ये f star t is the complex conjugate of the ft, NBT is the baseband noise at the input of the equalizer and this denotes the convolution operation. ठीक है, very well known to you. If the impulse response of the equalizer is HEQT, then the output of the equalizer is given by this. ठीक है, where GT is the combined impulse response of the transmitter, channel, RF-IF section of the receiver and the equalizer. The complex baseband impulse response of the ट्रांसवर्सल फिल्टर इज गिवन बाय दिस. ठीक है, तो ये अगेन हम लोगों को इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. सारे सिग्नल का देखो कॉन्वोल्यूशन है आपका. अगर ये देखोगे तो इन दोनों के बीच में कॉन्वोल्यूशन हुआ, फिर इसका कॉन्वोल्यूशन आपके इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ प्लस ये एनबीटी का कॉन्वोल्यूशन एचक्यूटी के साथ. तो आप देख सकते हैं 6.1 में ये कॉन्वोल्यूशन जो है टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स कंसीडर किया है. अदरवाइज 6.1 और इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ कॉन्वोल्यूशन सॉरी जो इंपल्स रिस्पॉन्स है उसका है. तो इस तरीके से आप कंबाइन करके हमने समेशन के फॉर्म में इसको इंटीग्रल फॉर्म में दिखा दिया कि अगर n नंबर ऑफ सिग्नल्स हो तो किस तरीके से आप इसको डिनोट करोगे. Cn are the complex filter coefficients of the equalizer. The desired output of the equalizer is the xt. The original source data is xt actually, and assume that nbt is 0. Then in order to force dt equal to xt, 6.2 gt must be equal to 0. और इस तरीके से आपका जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा. The goal of equalization is to satisfy equation 6.4 in the frequency domain and it can be expressed as this कि आपका जो impulse response है और इसका जो complex conjugate है उसकी वैल्यू जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन की 1 होनी चाहिए. Where HEQF and FF are the Fourier transform of HEQT and FT respectively. बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम तभी जाते हैं जब हम टाइम डोमेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले. ठीक है, अब क्योंकि मुझे एस डोमेन में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म किया. अगर मुझे एस डोमेन में जाना होता तो मैं लैप्लास लेता. ठीक है,
तो ये जो है एक आपको फिगर बताने की कोशिश की गई है इक्वलाइजर प्रेडिक्शन एरर की ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग एन एडॉप्टिव इक्वलाइजर एट द रिसीवर। एग्जाम में भी अगर आपको इक्वलाइजर के बारे में पूछे तो आप इतने जो इस क्लास में कवर हो रहा है उतना ही डिटेल आप देंगे। ओरिजिनल बेसबैंड सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, ट्रांसमिट किया, रेडियो चैनल में भेजा, फिर आरएफ फ्रंट एंड पे वहां से आईएफ स्टेज आया, रिफ्लेक्शन मैच फिल्टर आया, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट नॉइस यहाँ पे ऐड किया। नॉइस को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, एनबीटी जो इक्विवेलेंट नॉइस को रिप्रेजेंट करता है। इक्वलाइजर का जो हमने देखा इंपल्स रिस्पांस क्या है उसको कंसीडर किया, डिसीजन मेकर ने डिसाइड किया कि किस तरीके से इक्वलाइजेशन परफॉर्म करना है। फिर रिकंस्ट्रक्टेड मैसेज डेटा यहाँ से आ गया, ये फीडबैक सिग्नल दिया गया है ताकि कोई एरर है उसको यहाँ पे रिट्रीव किया जाए और उस एरर को वापस फीडबैक किया जाए इक्वलाइजर के पास, ताकि उस एरर को रेक्टिफाई करके वापस आप डिसीजन मेकर के पास भेजें। तो ये प्रोसेस जो है वो पूरा होता है एडॉप्टिव इक्वलाइजेशन के केस में। इक्वेशन 6.5 जो ऊपर था फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला इंडिकेट्स दैट, थोड़ा सा ऊपर, it indicates that an equalizer is actually an inverse filter of the channel. If the channel is frequency selective, the equalizer enhances the frequency components with small amplitudes and attenuates the stronger frequencies in received frequency spectrum in order to provide a flat composite received frequency response and linear phase response. Okay, for a time varying channel, adaptive equalizer is designed to track the channel variations so that equation 6.5 is approximately satisfied. तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, जेनेरिक एडॉप्टिव इक्वलाइजर बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। इसमें कुछ नहीं है, जो भी हमने पिछले इसमें पढ़ा उसको जेनेरिक तरीके से, अगर एन नंबर ऑफ सिस्टम्स हो तो ये अलग अलग सिस्टम्स का आप किस तरीके से ये जेड ट्रांसफॉर्म लेके आप उसको कंबाइन करोगे और उसके बाद आप एक इक्वलाइजर का आउटपुट निकालोगे। यहाँ पे एडॉप्टिव एल्गोरिथम लगा दो कि भाई किस किस तरीके से आपको वेट कंसीडर करना है, सारे वेट्स हैं, डब्ल्यू 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 सब वेट्स हैं, यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ये किस किस तरीके से ये ट्रांसमिट होगा और उसके बाद ये एरर रेट को किस तरीके से हमको क्या करना है, सेट करना है। ये बेसिकली इक्वलाइजर है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो एक जनरल डायग्राम आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, और फिगर 6.2 में देयर इज अ सिंगल, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। There is a single input yk at any time instant. The value of yk depends upon the instantaneous rate of the radio channel and the specific value of the noise. As such, yk is a random process. The adaptive equalizer reconstruct कुछ नहीं है, तो एंड डिले एलिमेंट्स n प्लस वन टेप जो मैं आपको बता रहा था उसके ऊपर वेट दिया गया है, कब कौन से एडॉप्टिव इसलिए क्योंकि मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ये वाला इनपुट कंसिडर करूं या ये वाला करूं या ये वाला करूं या ये वाला करूं एंड सो ऑन। तो वो एन नंबर सिस्टम्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, इतना ही इसमें समझाने की कोशिश की गई है और ज्यादा इसको डिटेल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बेसिक प्रोसेस है वही होगा जो हम लोगों ने पिछले वाले बेसिक उसमें न्यूमेरिकल में, बेसिक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, बेसिक स्टडी में पढ़ा। तो ये सारे चीजें डेरिवेशंस वगैरह आप छोड़ देंगे, जितना हम लोगों ने पिछले इक्वलाइजेशन टेक्निक तक पढ़ा उतना ही आप लोग को उसको पढ़ के फिनिश कर देना। ठीक है, ये हमको इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, प्योरली थ्योरेटिकल यूनिट है, तो आपको इन चीजों को भी छोड़ देना है और ज्यादा इक्वलाइजर के बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वही आपसे इक्वलाइजेशन टेक्निक के बारे में पूछेगा। डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजेशन, अब ये तो बहुत सारे टाइप्स हैं कि किस किस तरीके से इक्वलाइजेशन टेक्निक्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है जो हम लोगों ने आज स्टडी की कि किस तरीके से इक्वलाइजेशन टेक्निक को हम अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा आज। ये सारी चीजें आपको इक्वलाइजेशन टेक्निक के अंदर याद रखनी है। ठीक है, इतना याद रखिए, बेसिक डायग्राम याद रखिए और ज्यादा हुआ तो जेनेरिक इक्वलाइजर किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है ये याद रखिए। दिस इज इनफ फॉर इक्वलाइजेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।